بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقوی پرہیزگاری کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید پر اگر غور کیا جائے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث ان پر بھی غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر اور مختلف اسلوب میں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا، تقوی پرہیزگاری کی طرف ہمیں دعوت دی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے جب آپ سے وصیت نصیحت طلب کی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی پرہیزگاری ہی اختیار کرنے کا حکم اور اسی کی نصیحت اور وصیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں تقوی پرہیزگاری کی توفیق یا تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا یہ کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی پرہیزگاری سے نواز دے، مجھے تقوی پرہیزگاری حاصل ہو، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس چیز سے نواز۔ وزکیہا انت خیر من زکاہا، اسی طرح میرے نفس کو تو پاک صاف کر دے برائیوں سے، دیگر اور غلط کاموں سے، غلط سوچ سے، بدعقیدگی سے، تمام ان چیزوں سے اے اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کو پاک صاف کر دے۔ انت خیر من زکاہا، کیونکہ تیری ہی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ سب سے بہتر ذات ہے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اور تیری ذات ایک ایسی ذات ہے جو لوگوں کے نفس کا دلوں کا مالک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں تقوی پرہیزگاری سے نواز۔ اسی لیے محترم ناظرین، ہمیں خوب زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کریں۔ تقوی کہتے کیسے ہیں؟ تقوی سے مراد یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے نفس کو اس سے روک لیں۔ چھوٹی برائی ہو یا کوئی بڑی برائی ہو، کسی بھی قسم کی برائی، کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو، اس سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنے آپ کو اس سے روک لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کریں مکمل طور پر۔ اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کی دعوت کا ایک اہم حصہ اور جز یہ رہا کہ وہ تقوی پرہیزگاری کی طرف دعوت دیا کرتے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ تم لوگ سورہ الشعراء میں مختلف انبیاء کرام، کئی انبیاء کرام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ تم سب اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور اسی طرح تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک بابرکت کتاب قرآن مجید، یہ ایک بابرکت کتاب، مبارک کتاب ہم نے نازل فرمائی، تو تم اس کی اتباع، اس کی پیروی کرو، اور اسی طرح تم تقوی بھی اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہو، میرے لیے تم ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ،
लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर क्या है, रहम किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हासिल करने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम पर मेहरबान हो, तो इसके लिए एक अहम अमल जो हमें अपनाना है, इख्तियार करना है, वो ये कि हमारे अंदर क्या है, तक़वा पाई जाए। मुहतरम हज़रात, कहना एक अहम बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हमें माह रमज़ान नसीब हुआ। रमज़ान नसीब होने के बाद एक सबसे अहम जो इबादत इस माह में अंजाम दी जाती है, वो ये इस मुकम्मल महीने का रोज़ा। इस रोज़े का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, लाजिम किया? सिर्फ़ और सिर्फ यानी एक अहम मकसद ये था, कई मकासद में से एक अहम मकसद ये कि हमारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। अल्लाह का फरमान है कि ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहली जो अक़वाम गुजरी हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। और इस रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बनो। तो इसीलिए मुहतरम नाज़रीन, हमें रमज़ान के अव्वल दिन ही से इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि कैसे हम रोज़े के ज़रिए तक़वा इख्तियार करें, और हम किस तरह कैसे क्या है रोज़े के ज़रिए मुत्तक़ी और क्या है, परहेज़गार बने। अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की फ़र्ज़ियत के कई मकासद हैं, उनमें से एक अहम और बुनियादी मकसद जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाया, वो ये लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करो, तुम मुत्तक़ी बन जाओ और तुम क्या है, परहेज़गार क्या है, बन जाओ। और सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि और भी दीगर तमाम इबादात, इन इबादात की अदायगी से एक अहम बुनियादी मकसद यही है, अगर गौर किया जाए नुसूस पर, वो ये कि हम इन इबादात, तमाम तर इबादात की अदायगी से क्या है, हम क्या है, मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाए, हमारे अंदर तक़वा आ जाए। मिसाल के तौर पर यानी क़ुरबानी करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर अमल रहा। मकसद किया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए, क़ुरबानी के ज़रिए अल्लाह को क़ुरबानी का गोश्त या इसका खून नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारा तक़वा, तुम्हारा इखलास पहुँचता है। इस क़ुरबानी के ज़रिए कौन कितना ज़्यादा मुखलिस है इस क़ुरबानी की करने में, अदायगी क़ुरबानी करने में, और कौन कितना ज़्यादा मुत्तक़ी परहेज़गार है, अल्लाह को ये चीज़ क्या है, पहुँचती है। और इधर अगर गौर किया जाए तो वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस क़ुरबानी के ज़रिए तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तक़वा से मुराद अगर इधर देखा जाए तो इखलास मुराद है, कि अल्लाह तबारक व तआला इखलास को देखता है कि क़ुरबानी करने में तुम्हारे अंदर इखलास पाया गया या नहीं। और इखलास अगर देखा जाए, इखलास की ताबीर तक़वा से कुरान मजीद में इसकी यही एक अहम वजह हो सकती है, क्योंकि तक़वा के जो अरकान पाए जाते हैं, सबसे अहम और अव्वल रुकन तक़वा का यह है कि इखलास पाया जाना चाहिए। यही मामला हमारे अंदर भी पाया जाए, बिलखुसूस रमज़ान में। रमज़ान में जो कुछ इबादत हम करें, रमज़ान का रोज़ा हो, इसके ज़रिए हम अपने आप को मुत्तक़ीन के दर्जे पर पहुँचाने की कोशिश करें, तक़वा परहेज़गारी पाई जाए, परहेज़गार हम बने, मुत्तक़ी बने। और ये मुत्तक़ी परहेज़गार बनने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ा जब हम रखें तो रोज़ा रखने में हमारे अंदर क्या है, इखलास पाया जाए। अगर इखलास है तो ये तक़वा का एक अहम रुकन, एक बुनियादी रुकन क्या है, हमारे अंदर क्या है, पाया गया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर गौर करें कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा
ईमान के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है, अल्लाह के तरफ से ये रोज़ा फ़र्ज़ है हम पर, इस नीयत के साथ रोज़ा रखा, वहतिसाबन, और अल्लाह ही तबारक व तआला से सवाब की उम्मीद रखता है, इखलास है, रियाकारी, दिखावा, कोई दुनियावी मकसद मफाद नहीं, बल्कि अल्लाह ही से इसका बदला चाहता है, अल्लाह ही की रज़ामंदी हासिल करने के लिए वो रोज़ा रख रहा है। गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, इस नीयत और उसके दिल का ये माहौल रहा कि ईमान एहतिसाब के साथ मुकम्मल माह रमज़ान का रोज़ा रखा, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके सारे पिछले गुनाहों को क्या है, माफ़ कर दिया जाता है। तो अलगरज़ कहना ये था मुहतरम नाज़रीन कि रोज़े की फ़र्ज़ियत, तक़वा, परहेज़गारी, हमारे अंदर तक़वा आए, हम मुत्तकी बने, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा हम पर क्या है, फ़र्ज़ किया। तो इस अहम मकसद को हासिल करने के लिए हमारी जो है जद्दोजहद, कोशिश इस मुकम्मल महीने रहे, ताकि रोज़ा हम रखें, दीगर और इबादत करें, जो अहम मकसद था उस अहम मकसद को क्या है, हम हासिल कर लें, और जब हमें वो अहम मकसद हासिल होगा तभी हमें क्या है, कामयाबी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या है, दुनिया और आखिरत में क्या है, हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को रोज़े का ये जो अहम मकसद है तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस मकसद को पूरा करना और इस मकसद तक क्या है पहुँचने की हमें क्या है तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।